Hello and a very warm welcome. Thank you, Anita, for joining in. We are reading today's topic that we are going to read is You Can Be Happy Now from this book, The Courage to Be Disliked. We are just towards the end of this book. ये सारी हमने पढ़ ली है. This is the only few pages that are left. Let me very quickly start sharing the screen so that we can read it. Okay. You can be happy now. Youth says the courage to be happy. तो last जो chapter था उसके अंदर the last thing that philosopher said was, does one accept oneself on the level of acts or at the level of being? This is truly a question that relates to the courage to be happy. So it says that you are आपको अपने आप को accept करना है, not कि जब नॉट बाय द लेवल ऑफ एक्ट्स, दैट इज कि अगर आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो तभी आप वैल्यूएबल हो, तभी आप वर्दी हो. यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ टू द एट द लेवल ऑफ योर बीइंग, कि मैं हूं, उसकी वजह से कई चीजें सॉल्व हो रही हैं लाइफ में कई लोगों की. फॉर एग्जाम्पल आगे किसी एक चैप्टर में इसने ऑथर ने दिया था कि ना, अगर आपकी मदर का एक्सीडेंट हो जाता है एंड शी इज इन द हॉस्पिटल, तो तब आप क्यों उनके लिए प्रे करोगे? वो तो अब आपके किसी काम की नहीं है, वो आपको खाना नहीं बना के दे रही, वो आपको प्यार नहीं कर रही है, वो तो बेचारी हॉस्पिटल में है. बट द द इम्पोर्टेंस ऑफ हर बीइंग इज व्हाट कीप्स यू इन लव विद हर. तो दैट You इज have connection with them. इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग. यस. एंड उसके लिए आपको चाहिए द करेज टू बी हैप्पी. So the youth is asking the courage to be happy. Well, let's hear what kind of courage that should be. Philosopher, yes, that is an important point. Youth, you say that all problems are interpersonal relationship problems, and then you turn that around and say that our happiness is to be found in our interpersonal relations too. But I still, mm, but I still find these aspects hard to accept. Is what human beings call happiness merely something within our good interpersonal relations? That is to say, do our lives exist for such minuscule response and joy? Philosopher, I have a good idea of the issue you are grappling with. The first time I attended the lecture of Adlerian psychology, the lecturer Oscar Christiansen, who was a disciple of one of Adler's disciples, made the following statement: those who hear my talk today can be happy right now, this very instant. But those who do not will never be able to be happy. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग. अगर आप सोच लेते हो कि आपको आज खुश होना है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी राइट नाउ, यू कैन बी हैप्पी. बट अगर आप सोच रहे हो कि आई कैन नेवर बी हैप्पी, तो यू विल नेवर बी हैप्पी. यूथ, वाओ, दैट्स स्ट्रेट फ्रॉम द माउथ ऑफ द कॉन मैन. You are not telling me you fall for that, are you? Philosopher, what is happiness to human being? This is a subject that has been one of the consistent threads of psychology since ancient times. I had always regarded psychology as nothing more than a field of philosophy, and mm, and as such had very little interest in psychology as a whole. So it was as a student of psychology that I had concerned myself in my own way with the question, what is happiness? करिश्मा ये पेज डिफरेंट है मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो. ये ना मुझे भी ऐसे ही लगा. हाँ यार, ये वाला नहीं रीड करता. एक सेकेंड, मेरे ख्याल से ना इसका इसका ऊपर का थोड़ा सा पार्ट कटा हुआ है. ओके ठीक है. ठीक. I would be remiss if I do not admit of having felt some reluctance
on hearing Christiana's words. However, at the same time that I experienced the reluctance, I realized something. I had given much deep thought to the true character of happiness. ये आ गए हैं. ठीक Search है. for answers. But I had not always given deep thoughts to the questions. How can I be happy? It occurred to me then that even though I was a student of psychology, maybe I was not happy. Youth. I see. So your first encounter with Adlerian psychology began with the feeling of incongruity. Philosopher. That's right. Youth. Then please tell me, did you eventually become happy? Philosopher. Of course. Youth. How can you be so sure? Philosopher. For a human being, the greatest unhappiness is not being able to like oneself. Adler came with the extreme simple answer to address this reality, namely that the feeling of I am beneficial to the community or I am of use to someone is the only thing that can give one a true awareness that one has worth. जब जब हम अपने आप को, तभी इसने एडलेरियन साइकोलॉजी ये भी बोलती है कि यू हैव टू लुक एट एवरीबडी एज योर कॉमरेड्स. जब आप लोगों को एज अ कॉमरेड देखोगे तो लोग भी आपको एज अ कॉमरेड देखेंगे. जब आप लोगों को अपने लिए देखोगे तो आप ही लोगों के लिए होगे. एंड जब जब आपको पता चलेगा कि आप किसी के लिए यूजफुल हो, you will find more worth in yourself. So your being is more important. अब मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ, there is nothing that I'm doing for my parents, or else Right. the other way around as well. मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, I'm not doing anything for my parents, but there is very deep importance of their being, and they have a lot big different, this importance of my being. अगर मैं कल सुबह नहीं उठूंगी तो it will impact them. My being, How? it will impact them because they are connected to me from soul. They feel that when Karishma is there, even if there is a 5-minute call in the entire 24 hours, there is something they get out of it. Me being there is serving them some purpose. एक soul satisfaction है. क्यों? जब आपका जवान बच्चा की डेथ होती है, you go so low, you become so sorrow. Right. क्यों? आपके हस्बैंड अगर कॉमा में भी पड़े हुए हैं, यू आर हैप्पी बिकॉज ही इज देयर, क्योंकि इंपॉर्टेंस इज इन बीइंग. In the form of spirit. स्पिरिट भी क्यों? इंसान सामने दिख रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ एक ही कमरे में बैठे. माय हस्बैंड नेवर, ही डज नॉट टॉक मच नॉर्मली, बट ही डज नॉट लाइक कि करिश्मा सारा दिन नहीं बैठी है साथ में. इफ आई सिट इन दैट रूम से, तो मॉर्निंग में 2 बजे तक मैं फ्री होती हूँ. आई कीप सिटिंग दैट रूम ओनली. आई डू वॉट एवर मेरा सोशल मीडिया का मेरे को पोस्टिंग वेस्टिंग करनी है, मैं वहीं बैठ के करती हूँ. वाई? वो अपने फोन में देख रहे हैं, मैं अपने फोन में देख रही हूँ, पर जस्ट बीइंग देयर इज मेकिंग. आप दोनों एक दूसरे को भी देख रहे हो. our being is serving us in a way कि हाँ, my husband or my spouse or my wife is with me. Right. हर किसी इंसान की इस अर्थ पे होने की कोई वजह है. इवन द साइकिल से जो सामने से बंदा जा रहा होगा, that person also has some importance somewhere, and that makes him worthy. सही है. So the youth says, then please tell me, did you eventually become happy? Philosopher says, of course. Youth, how can you be so sure? Philosopher says, for a human being, the greatest unhappiness is not being able to like oneself. Edgar came up with an extremely simple answer to address this reality, namely that the feeling of I am beneficial to the community or I am of use to someone is the only thing that can give one a true awareness that one has worth. Do you mean
contribution to others you mentioned earlier, philosopher. Yes. And this is an important point. When we speak of contribution to others, it doesn't matter if the contribution is not a visible one. This is what I was talking about. कि अगर contribution मेरा बैठे यहाँ पे रहना is a contribution to my parents as well. My elder brother does not stay with my parents. He lives in Hyderabad. His existence ओके, matters to them. राइट, सही है। तो इसमें वो भी है ना, वो कंसेप्ट है, मतलब कि जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू किसी ने हमारी हेल्प की तो हम थैंक यू बोलते हैं। तो वो अच्छा क्यों लगता है सामने वाले को, क्योंकि हमने उसकी बर्थ रियलाइज की ना, तभी हम थैंक यू बोलते हैं सामने वाले को, उसकी हेल्प अप्रिशिएट की गई है। Yes, absolutely. The youth says it doesn't matter if the contribution is not visible one. Philosopher. You are not the one who decides if your contributions are of use. This is the task of other people and is not an issue in which you can intervene. In principle, there is not even any way you can know whether you have really made a contribution. That is to say, when we are engaging in this contribution to others, the contribution does not have to be a visible one. All we need is the subjective sense that I am of use to someone, and in other words, a feeling of contribution. कैसे कहते हैं ना कि जब हम सेवा का, जब हम कोई दान देते हैं, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, समथिंग अराउंड दैट। ओके, और मे बी वही, जैसे हमारी मेयर एग्जिस्टेंस ही, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इज नॉट डिसाइडिंग अवर वर्थ। जब आपने कहा कि मैंने किसी को थैंक यू बोला, उसने जो भी आपके लिए काम किया, उसने इस उम्मीद से नहीं किया था कि आप शायद थैंक यू बोलोगे। उसने तो राइट। क्या किया था, वो आपको लगा कि इट इज समथिंग यूजफुल टू यू, दैट इज व्हाई यू सेड थैंक यू। हम्म। किसी की नेचुरल आदत हो सकती है कि भाई बाहर अगर सब जा रहे हैं तो मैं दरवाजा खोल के रख देता हूँ, पर आप राइट। थैंक यू बोल रहे हो तो यू आर सेइंग थैंक यू बिकॉज अगर उसने नहीं पकड़ा था तो आपको पुश करके खोलना पड़ता वो दरवाजा। और उसमें ये भी ना, हमने उसका कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखा, कई लोग तो ध्यान में नहीं रखते और उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। यस, तो उसको भी खुशी मिल गई और आपको भी खुशी मिल गई। इट इज लाइक अ ड्यूअल थिंग। हम्म। Youth says, wait a minute. If that's the case, then what are you calling happiness is? Philosopher, do you see it now? In a word, happiness is the feeling of contribution. This is the definition of happiness. Youth, but एक second, that is on the next page. But that's philosopher. Is something wrong? Youth, that's no way I can accept such a simplistic definition. Look, I'm not forgetting that you told me before. You said, though on the level of acts, one might not be of use to anyone. On the level of being, every person is of use. But if that's the case, according to your logic, all human beings would be happy. Philosopher, all humans can be happy. But it must be understood, this does not mean all human beings are happy. Whether it is on the level of acts or on the levels of being, one need to feel that one is of use to someone. That is the say, one needs the feeling of contribution. जब जब हमारे को फील आती है कि हमने किसी जगह पे कंट्रीब्यूट किया है, we feel happy. और जब तक हमको नहीं समझ में आता कि सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड्स दैट सारा महीना ऐसे निकल गया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, एंड माय फ्रेंड्स आर टेलिंग मी, तुम पागल हो, यू आर होस्टिंग बुक रीडिंग क्लब ट्वाइस इन अ डे, सुबह शाम कर रही है, वीकेंड पे अलग बैच चला रही है, व्हाई आर यू सेइंग यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग? जो लोग आ रहे हैं उनको तो वैल्यू मिल रही है। And I'm like, oh, हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था, एंड आई बिकेम हैप्पी। हाँ यार, मैं तो बहुत काम कर रही हूँ सुबह शाम, इट इज अ बिग कमिटमेंट टू शो अप है, सुबह भी शाम को भी, एंड देन फिर वीकेंड पे भी, नो हॉलीडे मतलब की। एंड दे लाइक राइट, सही है। हाँ,
And so there are times when you need somebody to tell you you are of value. But the moment you realize that yes, you are of value, you feel happy. So my story, when I tell you that मेरे जब mother-in-law and father-in-law की death हो गई, I felt such a drain in my energy, and I felt that I am useless because I'm standing in the kitchen waiting for people to come and eat food and just looking at the walls कि अब ये आएंगे कब आएंगे and मैं खाना डाल के दूंगी. What was happening at that time? I was unhappy because I was not seeing my worth. जब तक mother-in-law and father-in-law थे, there was so much to do for them that I thought that I'm giving massive value. I'm serving them with all my heart and everything is happening good. But the moment they left for the heavenly board, I was like, मेरा काम खत्म हो गया इस दुनिया में. What am I there for? What do I do now? तो जब जब आपको लगेगा कि आप अपने कहीं पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, you will be happy. So you are saying that the reason I'm not happy is that I don't have a feeling of contribution. Philosopher says that is correct. You, then how can I get the feeling of contribution? By working through volunteering activities. Philosopher, earlier we were talking about desire for recognition. In response to my statement that one must not seek recognition, you said the desire for recognition is a universal desire. You, yes, I did. But honestly, I'm still not entirely certain about this point. Philosopher, चेंज करना फिर इसमें. sorry. You says, yes, I did. But honestly, I'm still not entirely certain about this point. Philosopher, but I'm sure that the reason people seek recognition is clear to you now. People want to like themselves. They want to feel that they have worth. In order to feel that, they want a feeling of contribution that tells them, I am of use to someone. And they seek recognition from others as an easy means for gaining that feeling of contribution. That's exactly what I just said, right? हाँ. मुझे किसी ने रिमाइंड कराया कि तू ये कर रही है ना, मैं oh yes, हाँ. And then I was like, oh, wow. हाँ, करिश्मा जैसे ना मेरे ब्रदर सिस्टर थोड़े से लड़के ऐसे हैं, एक ब्रदर एक सिस्टर ऐसी है कि शी इज हैविंग नेगेटिव पैटर्न ज्यादा है उनका. तो मैंने ना जब मेरे ब्रदर से बात करती हूँ ना, कई बार कहती है ऐसे कर लिया कर, ऐसे कर लिया कर, तेरे में गलती है, तब तो वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, फोन काट देगा. कोई नहीं सुनता है. Nobody wants a person standing with the toolbox to fix them. जब मैंने उसकी अप्रिशिएशन की बात की स्टार्टिंग के, तेरे में ये क्वालिटी अच्छी है, बट वो कोई रिकॉग्नाइज, वो बात हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फिर Yes. उसने सुनी मेरी बात. आपने ये देखा होगा अनीता कि जब जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है आप खुश होते हो एंड यू आर मोर विलिंग टू लिसन टू देम कि हाँ और क्या बोलना चाह रहे हैं. हम्म. ऑलवेज मीट द पर्सन वेयर दे आर. इट इज अ रूल. हमेशा जो इंसान जहां पर है उसके लेवल पे जाकर उनसे तब बात करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट देम अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग देम 100% फुली. एंड देन जब आप उनको फिर थोड़ा से उनसे लेवल ऊपर की बात करोगे, दे विल बी मच मोर विलिंग टू लिसन टू यू. दिस इज हाउ द पेरेंटिंग हैपेंस. दिस इज हाउ द कोचिंग सिस्टम हैपेंस. राइट. सही है. बच्चों को बट बच्चों जैसे ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे ना कॉलेज में भी है, कई लोग अपने आप को हायर कंसीडर करते हैं, मे बी, पता नहीं, मेरे कॉलेज में ज्यादातर मेरे कोलीग्स ना जाट लोग नहीं होते ज्यादा, वो है. ठीक है. तो मुझे ये लगा उनमें तो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर ज्यादा गिनते हैं बातों में. मैं ज्यादा बात नहीं करती अभी भी, जैसे मैं थोड़ा सा मीटिंग में भी उतना एक्सप्लोर नहीं करती, बोलती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे तो करना है ना, तो वहां पे फिर मैं ज्यादा बात नहीं करती. पता नहीं उनको, कई लोग तो ना जैसे कपड़ों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ड्रेसिंग सेंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, एंड कईयों को ऐसे लगता है भी हमारे में तो हम रुपया खर्चने में ये है वो है ना, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि पता नहीं उनका ड्रेसिंग सिस्टम अलग होता है ओनली, जैसे भी हमारी फैमिली टाइप.
तो फिर मैं ना उनसे ज्यादा बात नहीं करती, मेरा मन नहीं करता, बस टू द पॉइंट, जितनी बात करनी है, कोई काम है, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं लो फील करती हूँ उन्हें ये सेशन वगैरह लगा के, तो मुझे, मैं ऐसा नहीं है। आई फील कंफर्टेबल एज आई एम, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आई एम डूइंग गुड। यस। बट जैसे आपने बात की ना कि उनके लेवल पे जाके बात करो, हमसे जो बंदा लोअर है, मान लो ये बुक रीडिंग के इसी कंसेप्ट में कह लो, अंडरस्टैंडिंग के मामले में, उससे तो बात कर लेंगे हम। लेकिन जो बंदा हमसे अपने आप को हायर गिनता है, उनको ये चीजों की नॉलेज है, उनको, कई लोगों को ये बुक रीडिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो उनसे बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको ना, सो एडलेनियन साइकोलॉजी आल्सो सेज दैट जब तक हम रिलेशनशिप्स को वर्टिकल उसके अंदर सोचेंगे, तब तक हमारी लाइफ में हमेशा जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहेंगी। जब आप उसको हॉरिजॉन्टल ले आओगे कि एवरीबडी इज इक्वल अपने दिल में, यू विल नॉट रेजिस्ट टॉकिंग टू एनीबडी। नहीं, दैट आई एम ओके, बट कई बार ऐसा होता है ना, उनके, पता नहीं, ये चीजें उनको नहीं पसंद आएंगी, कई लोगों को तो मुझे लगता है ऐसे लगेगा ये क्या है, पागल है। मुझे ऐसा लगता है, कई बार तो बंदे कहेंगे, क्योंकि नहीं। कई लोगों को इन चीजों की नहीं जरूरत है, जो अपनी लाइफ में खुश है ना, हाँ। उनको नहीं, नहीं, पर आपने नहीं जरूरत है। बताना क्यों है? क्या? आपको उनको बताना क्यों है? बताना नहीं, हम तो, हमारी जो नॉलेज है तो हम उन चीजों की बात करेंगे ना। So wherever the kind of people you are sitting in is the kind of talks you do. So if नहीं, you वो have, नॉर्मल, जैसे किसी को डिस्कस कर लिया, नॉर्मल बातें कर ली, जैसे अपनी फैमिली को डिस्कस कर लिया, मुझे लगता है यार, अब मुझे ऐसे लगता है कि यार कोई बातें करने को कोई फायदा नहीं है। exactly, it's of no use. So that means you are sitting around people who are not worth talking to in any case. हाँ, तो मुझे निग्लेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है, कि मैं अपना काम करती हूँ, जो मुझे टास्क करने हैं वो करूँ, साइड पे जाके इन बातों में ज्यादा पढ़ना नहीं है। किसी ने मुझे कुछ कह भी देना, कोई, जैसे कि हुआ अभी 3-4 दिनों की बात है, किसी ने कहा कि नीता तूने कॉटन का, मैंने प्लाजो पहना हुआ था, मैंने सॉक्स पहनी हुई थी साथ में, ठीक है, कहती मैम तुसी, आपने प्लाजो तो कॉटन का पहना हुआ है, साथ में सॉक्स पहनी हुई है। तो मैं तो ना, तो मैं जवाब दे सकती हूँ वहां पे कि मैंने क्यों पहनी है, क्योंकि पता नहीं, कई बार तो ऐसा लगता है क्यों आंसर दे, कई बार आंसर आता भी नहीं है क्या गए, है ना। बट मुझे अपने आप में ठीक लगता है, जो कर लिया जाए, मुझे ज्यादा ड्रेसिंग का नहीं सोचना। तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ यार, मैं फालतू में अपना काम करूँ, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना। Hmm. तो लोग तो वही है ना, सब चीजें कंसीडर करते हैं वो लोग। It's like, if you have resources, right? It's not wrong to use it to dress up well. If you राइट। feel that आप अपनी लेवल, अपनी इनकम, अपनी चादर में रह के बेस्ट ड्रेसअप कर रहे हो, और यू हम्म। बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एनी हाउ, देन यू नीड नॉट बॉदर, राइट। राइट? तो ये सारी छोटी बातें होती हैं, यू पीपल एक्चुअली, so I want you to think of it this way. You start treating yourself well, you start treating yourself with respect, you start treating yourself with utmost love. When that starts reflecting out of your being, people will start doing that for you as well. There has to be some kind of a body language, some kind of thing happening around, because of which people might be thinking you are lower than them. राइट। You know, क्योंकि how you show up also talks a lot about you. अगर मैं, मेरे पास नॉर्मल टी शर्ट भी है, मेरे पास ये थोड़ा सा बेटर टॉप भी है, मेरे पास सूट भी है, मेरे पास सब किस्म के कपड़े हैं, मेरे पास झल्ले कपड़े भी हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े भी हैं। Now how हम्म। I am showing up on this screen will decide for people how they are going to treat me. Now how will I show up in the best that I can? सही है। ठीक है ना? तो हमको ये नहीं देखना है कि लोग मुझको छोटा समझ रहे हैं इसलिए मुझको अपग्रेड करना है अपने आप को। यू हैव टू सी
कि मैं इससे कितना लेवल अप कर सकती हूँ, एंड आई विल डू दैट, नॉट बिकॉज पीपल आर सेइंग, बट बिकॉज यू हम्म। वांट टू शो अप इन अ सर्टेन वे। सही है। हाँ, ट्राई वही चीजें जल्दी जल्दी एनालाइज कर रही हूँ, जैसे बुक भी साथ में रीड करती हूँ तो उनके साथ कॉन्टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक दिन हम कैंटीन पे जा रहे हैं तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, दोनों चार लोग गए हम कैंटीन पे, ठीक है, कॉलेज की कैंटीन पे। तो वो जैसे किसी बंदे को लेके बैठ गई, टॉपिक भी हमारे घर में ऐसे है, ऐसे मैं भी कई बार बोल देती हूँ। बट कई बार तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता यार, क्या बातें करनी घर की भी, ये हो गया वो हो गया, ऐसे है वो ऐसे है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, मतलब कि अपने आप में रहना लगता है कि अच्छा है। कई बार तो ये लगता भी नहीं यार, जाना ही नहीं। कई बार जाना अच्छा भी लगता है, बस मिक्स एंड मैच है क्यों। I can understand where you are coming from. And the thing is, because this is a phase that you're shifting. Your being is shifting हम्म। from here to there. तो इसलिए आप हम्म। उसके बीच में कभी आपको बड़ा मजा आ जाता है कि ये चुगलियां हुई, हाँ देखा मेरे घर में भी ऐसा होता है, डाडा डाडा डा। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील एकदम ऑफ कि यार मेरे को इस लेवल पे जाना ही नहीं है। हम्म। सो क्योंकि व्हाट मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, ये अपने आप को इवॉल्व करने में। एग्जैक्टली। तो जब आप इस इवॉल्विंग की स्टेट में होते हो, सो आई रिमेम्बर व्हेन when I was in that state. So what used to happen was my mom used to call me. She used to crib and cry about things, and I used to be like, "Hmm, hmm, hmm." And मम्मी मुझसे कुछ बता और बता, एंड आई एम लाइक कुछ नहीं सब बढ़िया है, कुछ नहीं सब बढ़िया है। And she's like, अच्छा तेरे पास तो बात ही नहीं है, चल बाय। सो व्हाट हम्म। हैपेंड, धीरे धीरे जो दिन में 4 बार बात हो रही थी, वो दिन में कई बार 0 बार हो गई, कई बार 1 बार हो गई। एंड व्हेन शी वुड कॉल, शी वुड लाइक, तू तो अपने काम में बिजी होगी ना, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हम लाइक, क्लास थी ना। हाँ। Now when she talks to me, now we are talking at another level. She had to raise her bar to reach to talk to me multiple times in a day. That is, she brings in spiritual context. आज ना सत्संग में ये बोला था, आज सेवादार में मीटिंग हुई थी तो ये बोला था, एंड आई एम लाइक, ओह वाओ, टेल मी मोर। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा है। एंड अब देन ऐसा है। she's like, अच्छा अच्छा, now you're in there, and I make sure that I compliment her before she the end call ends. आज मेरे को आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपके पास जब जब ऐसी बात होती है आप कॉल कर लिया करो मुझको। People, so there are so many people who are going to leave you because you are not contributing the way they are contributing, and it's okay, because this is a journey wherein many multiple people are going to leave you, and if you see people leaving you, understand that you are growing. If people tell you तू तो बदल गई है, तू तो बात ही नहीं करती, celebrate that day, because you are spending multiple thousands and crores and lakhs of rupees just to change your being, and celebrate because they are acknowledging that you have shifted. हाँ, सही है। मुझे ना आज कल का एक्सपीरियंस, आज सुबह का एक्सपीरियंस बताऊं। पहले कभी नहीं हुआ, मैं इतने दिनों बाद आज मंदिर गई घर के पास। तो मुझे लिटरली वहां पे, मैं शिव जी के मंदिर के सामने बैठी हूँ, बाद में मुझे वहां पे श्री कृष्ण जी का एनालाइज हुआ, फिर बाद में मुझे लगा वहां पे मंदिर में खेल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैसेज मिलता है, उनसे मैसेज भी मिला। ठीक है। तो जैसे मैं चाइल्ड के रूप में देखा मैंने उनको, तो बहुत अच्छा लगा आज, पता नहीं, फिर वही है ना, जब हम कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं इन चीजों से, तो अच्छा लगता है वही। और उसके बाद में, जैसे कृष्ण जी ने मुझे बोला भी मेरी सिस्टर के, मेरी बेटी के बारे में, कि उसको भी मंदिर में साथ लेके आया करो। तो उसके बाद मेरी बेटी मंदिर गई ना, उसका फर्स्ट एग्जाम था, तो हमने कहा तू मंदिर चली जा। वो अपने दादाजी के साथ गई, दादू के साथ। और वहां पे कहती मम्मा मैजिक हुआ, 7 इयर्स की कह रही है आके। मैंने तो कुछ नहीं बोला उसको आके। कहती मम्मा मैजिक हुआ, मैं तो अभी, मैं और दादाजी तो प्रसाद का सोच रहे थे मंदिर में, और वहां पे महाराज जी आए और मुझे प्रसाद देके चले गए। Things turn out very beautifully. Your family shifts beautifully when you shift. This is a beautiful, life is beautiful. We are the ones who make it complicated. We are the ones who make it difficult for our own selves. हाँ। तो अच्छा लगा मुझे वहां पे, अब ऐसा लग रहा है कि मंदिर में वो खेल रहे हैं।
जहां पे कनेक्टिविटी हो, जहां पर आपको रिसेप्टिविटी हो। सो फॉर ब्लेसिंग्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम कोई रेडियो पे गाना सुनते हैं तो वी हैव टू ट्यून इन टू दैट स्टेशन, टू दैट फ्रीक्वेंसी। देयर इज सम ट्यूनिंग दैट हैज टू हैपन हियर फॉर अस टू बी रिसेप्टिव। राइट, सही है। जब आप वो रिसेप्टिवनेस पे आ जाओगे, यू विल सी हाउ ब्यूटिफुल एंड लविंग दैट अर्थ इज। हम्म। एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल। तो लग रहा है भी, हाँ सही है यार। अच्छी फीलिंग्स है, जैसे ऊपर वाला पार्ट ना बॉडी का, अब ऐसे नहीं लगता भी हम ईगो फील करते हैं कुछ। मास्टर योर इमोशन से सीखा कि ईगो रिसेंटमेंट ये सब कुछ छोड़ के ना, वैसे लगता है भी ठीक है यार, सब कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। एंड इवन इन दिस बुक इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन कि जब आप सोचते हो ना आपका बच्चा आपसे छोटा है और आप उसको बोलते हो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, भाई अगर आप उसको इतना इम्पोज तब करते हो जब आप सोचते हो कि वो आपके इक्वल नहीं है, आपसे छोटा है। आवर एम इज टू बी इक्वल्स विद एवरीबडी। और जब हम सब इक्वल होंगे ना, तो सिर्फ प्यार, शांति, सुख और खुशी होगी। ना आपका हम्म। बच्चा आपसे इरिटेट होगा, ना आप अपने बच्चे से इरिटेट होगे, ना आप किसी को देख के जेलसी करोगे, एनवी करोगे, ना कोई और आपको देख के एनवी करेगा, बिकॉज यू ऑल विल बी अलाइंड इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि यार अनीता तेरी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, कौन सी लगाई है? एंड अनीता इज लाइक मैंने ये वाला शेड लगाया, तेरे लिए मंगवा दूं क्या? इट विल नॉट बी हम्म। मेरा शेड अच्छा है, मैं नहीं बता रही, मैं तो नंबर भूल गई। सही है। चलो बट आगे चलते हैं। वाह, दैट वाज अ ब्यूटीफुल टॉक। मैं सोच रही थी पहले ऐसे ही सेशन जो स्टार्ट किया कि शेयर करूंगी अपनी आज वाली। तो मैंने ना मंदिर, उसके बाद जब मैं कॉलेज से चली बस में, तो तब भी मुझे कॉलेज में काम किया तब तो ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में फीलिंग रही। बस में चली तो फिर आया मंदिर में कृष्ण जी घूम रहे होंगे चाय धूप में, बस में ही। फिर मैं आके वहां पे फिर एक बार मैं क्या कितनी खुशी जाके दिखती है आऊंगी। ना, आप सारा दिन उस चीज को इमेजिन करके खुश रहते हो, आप स्माइल करते रहते हो, ओए। हाँ सही है। तो पता नहीं, अच्छा लगा। मैं क्या, अब मैं जाया करूंगी, ट्राई करूंगी इस मॉर्निंग में। दैट्स अ गुड शिफ्ट। सो द यूथ सेज, चलो फिलोसफर से स्टार्ट करते हैं। Earlier, we were talking about the desire for recognition. In response to my statement that one must not seek recognition, you said that the desire for recognition is a universal desire. Youth says, yes, I did, but honestly, I'm not entirely certain about this point. Philosopher, but I am sure the reason people seek recognition is clear to you now. People want them like themselves. They want to feel that they have worth. In order to feel that, they want a feeling of contribution that tells that I am of use to someone. And they seek recognition from others as an easy means of gaining that feeling of contribution. Youth, you are saying that the desire of recognition is a means for gaining a feeling of contribution. Philosopher, isn't it so? Youth, no way. That contradicts everything you have been saying up till now. Because isn't receiving recognition from others supposed to be a means of gaining a feeling of contribution? And then you say happiness is the feeling of contribution? If it is, then fulfilling one's desire for recognition is directly linked with happiness, isn't it? Ha ha. At last, you have acknowledged the necessity of the desire for recognition. Philosopher, you are forgetting an important issue. If one's means for gaining a feeling of contribution turns out to be being recognized by others, in the long run, one will have no choice but to walk through a life of accordance to other people's wishes. There is no freedom in the feeling of contribution that is gained through the desire for recognition. We are beings who choose freedom while aspiring to happiness. ये समझ में आया?
हाँ, वो रीजन ही कह रहा है ना अभी मिलके, पहले कंट्राडिक्ट हो गया कि वो तो कह रहा था, दिमाग में स्किप कर रहा है, एक मिनट। तो यूथ बोल रहा है कि ये मुझ रिकॉग्निशन लेने तुम, हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो यूथ बोल रहा है कि आपने बोला था कि हमारे को वी शुड नॉट सीक कि हमारे को लोग रिकॉग्नाइज करें। बेटा, आई एम इन सेशन राइट नाउ, कैन वी टॉक लेटर? कि हमारी हमारे को डिजायर नहीं होनी चाहिए रिकग्निशन की। पर आप कह रहे हो कि आप जब कोई काम करोगे आपको रिकग्निशन मिलेगी, और उससे फिर आपको पता चलेगा आपकी वर्थ है, और फिर आप खुश हो जाओगे। हम्म। है ना? तो मतलब आपने तो अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो दिस वन इज सेइंग कि आप ये बात भूल रहे हो कि हमारे को लोगों से रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। लोगों को जब लोग हमारे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड वी आर सीइंग फॉर आवरसेल्व्स कि हम एक्चुअल में कुछ वर्थी हैं, तो यू विल फील ओके अबाउट इट। आपको उस लेवल की नहीं चाहिए कि यू स्टार्ट सीकिंग वैलिडेशन, यू स्टार्ट सीकिंग रिकॉग्निशन। अगर लोग कहेंगे कि मैंने कुछ किया है तो ही मैं खुश होंगी। यू गेट दैट? यू हैव द फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि आपने कंट्रीब्यूशन करना है, एग्जैक्ट। वेदर पीपल रिकॉग्नाइज इट और नॉट। यस। एंड जब आपको अपने आप को अवेयरनेस होगी कि यस आई हैव डन सम कंट्रीब्यूशन, यू विल बी हैप्पी। Youth says, so one can have happiness only if one has freedom. Youth. Philosopher. Yes, freedom as an institution may differ depending on the country, the times, or the culture. But freedom is our interpersonal relationship is universal. Youth. There is no way that you will acknowledge the desire for recognition. Philosopher. If one really has a feeling of contribution, will no longer have any need for recognition from others, because one will already have the real awareness that I am of use to someone without needing to go out of one's way to be acknowledged by others. This is what exactly I just said, right? In other words, a person who is obsessed with the desire for recognition does not have a community feeling yet, and has not managed to engage in self acceptance, confidence in others, and contribution to others. So, this book has shared three levels, three things that are very important. ठीक है? एक है सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस इन अदर्स, एंड थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स। आप ये जो पॉइंट समझा है तो है ना। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस तो आपको समझ में आ गई। कॉन्फिडेंस इज अदर्स is that, first of all ये तीन points हैं, so that you live in harmony and to live as a community, to live as a horizontal interpersonal relationships and not vertical. These three things are required. First is self-acceptance. Second is confidence in others, that others are your comrades. Nobody in your life is around you because they are your enemy. Everybody is a comrade who is helping you grow. अगर वो कोई कोई बुरा भी दे बोल देता है, कोई अच्छा भी बोल देता है, ऑल आर हेल्पिंग यू ऑन दिस जर्नी। ठीक है? इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स इज, द कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी हम सुबह से मतलब जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो बात। यूथ सेज, so if one just has community feeling, the desire for recognition will disappear. So yes, philosophy says yes, it will disappear. There is no need for recognition from others. हमारे को सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम ये देखते रहते हैं हमारे को कब वैलिडेशन मिलेगी, हमारे को कब रिकॉग्निशन मिलेगी। पर अगर हमारे को अपने आप के अंदर, अपने दिल के अंदर पता है कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, आई एम डूइंग द बेस्ट ऑफ माई, वॉट एवर बेस्ट आई कैन गिव, आई एम गिविंग, everything else, somebody recognizes you or not, will not matter. Now outside world, so when, so this was a question that came to me, was that in that case, why do coaches keep on asking for feedbacks for the testimonials? वो भी तो एक तरीके से recognition है। And the answer that my soul gave me was, क्योंकि
I know I'm worthy. I know the person who is coming to this room is getting the value. But how about if my soul says I want to serve hundreds of people? How do I reach to them? इसलिए coaches tell you कि अच्छा मेरे को testimonial देना. Because every room I go to, even मैं एक master class attend करने चली जाऊंगी तो I will immediately get from a call from their team कि how was the session for you? Would you like to give a testimonial? I'm like सारा टाइम ये क्यों करते रहते हैं? Why do they need themselves to recognize? भाई उनको पता है they are doing a good job. Why they don't want they want है ना? And then I realized कि अच्छा ठीक है और लोगों को reach out कैसे करेंगे? How will people know that they are doing such a good job and come to their room to experience them? So I was like, okay, make peace with it. It's okay. All right. The philosopher point could be summed up as follows. People can only be truly aware of their worth when they are able to feel I am of use to someone. However, it doesn't matter if the contribution one makes at such a time is without any visible form. It is enough to have the subjective sense of being of use to someone. There, that is to say, a feeling of contribution. And then the philosopher arrives at the following conclusion. Happiness is a feeling of contribution. There certainly seem to be aspects of the truth there. But is that really all that happiness is? Not if it's the happiness I am searching for. Tomorrow, we will be reading about two paths traveled by those wanting to be special beings. This is some part which I have no clue about what they are talking about, but yes, it will be interesting to read about it. So that's all for today. If you have anything else to share, Anita, please feel free to share. मैंने पहले ही शेयर कर दिया वैसे। अभी और को कुछ नहीं है। मैंने ना उसका पूछना था एक आपसे, जो आप 23 मार्च का है, क्या है उसका सिस्टम? Thank you. Have a good night and God bless you. See you tomorrow.